Hello everyone, welcome to your own channel Food Tech Network. So as you all know, we begin the second component as a constituent in our brand new series, that is basic constituents of food. So we discussed about carbohydrates in the previous video, and I said this series on carbohydrates would conclude by 3 videos, and this is the second part of the video. So without getting late, let us see what all we are going to discuss today. So in today's lecture, we will discuss about the properties of monosaccharides. In the last class, we ended up by discussing the structure of monosaccharides and their some of the other physical properties. So today we will basically talk about the chemical properties of monosaccharides, mainly focusing on oxidation and reduction properties. Then we will start with oligosaccharide, which are intermediate between mono as well as polysaccharide, and we will discuss their structure, function, and other aspects. So let us begin with it. Properties of monosaccharides. Whenever I say that something is having a property or something is having any attribute, जब भी हम बोलते हैं किसी की एक प्रॉपर्टी होती है तो प्रॉपर्टी का एक रीजन होता है जो कि उस पर्टिकुलर चीज के स्ट्रक्चर के अंदर छुपा होता है, राइट? हम बचपन से ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए मोनोसेक्राइड के केस में भी हमारे पास यही केस आता है. बिकॉज ऑफ द रिएक्टिव ग्रुप, दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप present in the carbohydrates and specifically monosaccharides undergo many reactions. So the reason why monosaccharides undergo such reactions is because of the presence of such reactive groups. They readily enolize in alkaline solution and reduce copper and ferrous ions. We know that enolize is a process. We know enol is a compound which contains a unsaturation of carbon atoms and a hydroxyl group attached to that sp2 hybridized carbon. But हमको उतनी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है. एक बेसिक प्रॉपर्टी जो कि मोनोसेक्राइड्स की ये होती है कि एल्कलाइन सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसकी प्रेजेंस में इनोल कंपाउंड्स बना देते हैं. इसके अलावा कॉपर और फेरस आयंस को भी ये रिड्यूस कर देते हैं, और इसी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के कारण हम इनको रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं. अब ये जो रिड्यूसिंग नेचर है, यही एक रीजन था जिस रीजन के कारण जो पॉलीमराइजेशन होती है या जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं. हुआ क्या, इनिशियली फ्रॉम द इवोल्यूशन व्हेन plants started producing monosaccharides for transport and storage, what happened? Due to their reactive nature, they started reacting with the components present in plant body. Just to remove such things and ensure that they remain in the same form, they started condensing them by the removal of water in less reactive form, and these less reactive forms were none other than are oligosaccharides and polysaccharides, right? So now let us see the basic properties of monosaccharides, beginning with oxidation. So I hope all of us are knowing oxidation. The loss of electrons is known as oxidation. In terms of hydrogen and OH terms, the removal of hydrogen is known as oxidation, right? So the reducing sugars, which are reducing in nature, are readily oxidized to sugar acids. A mild oxidation of aldoses, when only the aldehydic group is oxidized, gives us aldonic acid. हमने बचपन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है कि एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और एल्डिहाइड्स की अगर रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास अल्कोहल बनता है. सेम गोज फॉर कीटोन. कीटोन की भी ऑक्सीडेशन हमें आफ्टर ब्रेकेज एसिड्स देती है और उसकी रिडक्शन हमें अल्कोहल देती है. तो क्योंकि हमारे पास जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ही है आफ्टर ऑल, तो वो भी ऑक्सीडाइज होकर के एसिड्स बनाते हैं. बट ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीडेशन किस पॉइंट पे हो रही है. तो जो पहला केस है वो है एल्डोनिक केसेस का. जब सिर्फ और सिर्फ ये एल्डिहाइड ग्रुप, ये CH ग्रुप ऑक्सीडाइज्ड हो, तो जो कंपाउंड फॉर्म बनता है उसको, जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्डोनिक एसिड. फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, जैसा आप देख सकते हैं. ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में अगर ये टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप की ऑक्सीडेशन हो जाए, CHO से COOH बन जाए, तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो एल्डोनिक होगा, और ग्लूकोज के केस में इसको ग्लूकोनिक एसिड हम बोलेंगे. So this was the first case of oxidation. Now let us see how and where are these found. Honey is a major example of a source of gluconic acid. Honey के अंदर ग्लूकोनिक एसिड, जो कि एक मोनोएल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड एसिड है, वो पाया जाता है. The second type of oxidation is the one in which both the aldehyde as well as the alcoholic group present undergoes the oxidation. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. जब ये दोनों के दोनों ग्रुप्स की ऑक्सीडेशन हो जाए तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकैरिक एसिड या एल्डेरिक एसिड.
इसके केस में क्या होता है कि ये एल्डिहाइड ग्रुप भी जो हमारा टर्मिनल पोजीशन पे ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और जो ये हमारा अल्कोहल ग्रुप है ये भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा एंड जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो होगा एल्डेरिक एसिड। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हमें देगी ग्लूकैरिक एसिड। Now, where are glucaric acid found? Fruits are abundant source of glucaric acid. Among the fruits, grapefruit, which is somewhat similar to the citrus fruits like oranges and all, it is the most abundant source of glucaric acid. Along with that, oranges, apples, peaches, etc. are also some important sources. The third important type of oxidation that occurs is that when only the terminal hydroxyl group gets oxidized. Oxidation of the terminal alcoholic group of aldose without the oxidation of aldehydic group gives alduronic acid. Term ध्यान से पढ़िए, जब से टर्मिनल अल्कोहलिक ग्रुप की ऑक्सीडेशन हो देन जो कंपाउंड फॉर्म होगा वी विल कॉल इट एल्ड्यूरोनिक एसिड। जैसे हमारे पास एग्जांपल है ग्लूकोज है, ग्लूकोज की टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ऑक्सीडेशन हमें देगी ग्लूक्यूरोनिक एसिड, क्योंकि एल्ड्यूरोनिक है तो ग्लूक्यूरोनिक एसिड। और इसका मेजर सोर्स है, वैसे तो जनरली इसके मेजर सोर्स हमें फाइंड नहीं करते, लेकिन ग्लूक्यूरोनिक एसिड खुद एक कंपोनेंट है पॉलीसेकेराइड्स का। जैसे आपके पास ये पेक्टिन का सैंपल मैंने आपको दिखाया, पेक्टिन जो है एक पॉलीमर है या फिर एक पॉलीसेकेराइड है और इसका एक मोनोमर होता है ग्लूक्यूरोनिक एसिड या फिर गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड, मेनली गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड बट ऑल्सो ग्लूक्यूरोनिक एसिड। So after discussing about the oxidation, now we will discuss about the reduction. We know that when any aldehydic group is reduced or any ketonic group is reduced, the compound form is alcohol. So reduction of carboxyl groups of monosaccharides yield sugar alcohol which we call as aldedol. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये जो aldehydic ग्रुप है अगर इसका हम लोग रिडक्शन करेंगे तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएगा and the corresponding compound form will be alditol. In case of glucose it will be glucitol जिसका कॉमन नेम है सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल या फिर अदर शुगर एल्कोहल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ह्यूमिकेंट्स होते हैं, ये मॉइस्ट रखते हैं फूड को, इसलिए केक्स, बेकरीज, इन सब चीज, केक या फिर अलग बेकरी प्रोडक्ट्स में इनको हम लोग यूज करते हैं। So after discussing about the properties of monosaccharide, we wind up with that and let us begin with the oligosaccharides. What are oligosaccharides? As I said, the number when the number of monosaccharides in the constituent molecule ranges from 3 to 10, then the compound form is known as oligosaccharides. Now, if I talk about the general formula, oligosaccharides are formed by the polymerization of n molecules of monosaccharide by the elimination of n-1 molecules of water, where n can range from 3 to 10. मतलब अगर हमारे पास n molecules of sugars react करके एक oligosaccharides बना रहे हैं तो n-1 water molecules निकलेंगे। फॉर एग्जांपल सुक्रोज में हमारे पास दो मॉलिक्यूल आते हैं, एक हमारे पास ग्लूकोज का आता है, एक फ्रक्टोज का आता है। सो n की वैल्यू हो गई 2, तो वाटर मॉलिक्यूल कितने निकलेंगे n-1 यानी 2-1 equals to 1. Now, depending on the value of n or the number of participating monosaccharides, oligosaccharides can be classified as di, tri, tetra, etc. Di में 2, tri में 3, tetra में 4. रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग दो तरीके के ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, ये कब फॉर्म होंगे? Reducing oligosaccharides are formed when the anomeric hydroxyl group of one monosaccharide unit is linked with the alcoholic hydroxyl group of the next, and water is eliminated between anomeric hydroxyl group of different units. Non-reducing oligosaccharides such as sucrose, raffinose, etc. are formed. ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसे आप देख सकते हैं। सुक्रोज, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, दैट इज बिकॉज इसमें दोनों जो पार्टिसिपेटिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं वो एनोमेरिक कार्बन को बिलोंग करते हैं और इसीलिए हमारे पास कोई फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं बनता, दैट इज व्हाई इट इज नॉन रिड्यूसिंग। लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग ओलिगोसैकेराइड। रैफिनोज जो कि या फिर माल्टोज जो कि हमारे माल्ट बनाने में हेल्प करता है वो भी एक रिड्यूसिंग है क्योंकि इसमें एक एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बच जाता है। Now, let us discuss the important disaccharides or which are a part of oligosaccharides themselves. See, sucrose, maltose, lactose, raffinose and stachyose. Now, sucrose, maltose and lactose जो हैं वो disaccharides हैं, इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। Raffinose and stachyose, this is a tetra
this is a trisaccharide and this one is a tetrasaccharide. Now some of these occur as such in food products while others are partially hydrolytic products of naturally occurring polysaccharides. मतलब कुछ तो फूड्स में एज इट इज जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ये तो एज इट इज फाउंड होते हैं, लेकिन कुछ को फॉर्म करने के लिए हमें पॉलीसेक्राइड्स की हाइड्रोलाइसिस करनी पड़ती है। सुक्रोज जैसा कि हम सब जानते हैं इज फाउंड थ्रू आउट द प्लांट वर्ल्ड और इसकी सबसे अबंडेंट सोर्स है शुगर केन, शुगर बीट और मापले सिरप है। यही रीजन है कि हम जो टेबल शुगर है इसको हम लोग इन सोर्सेज से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब सुक्रोज की प्रॉपर्टी होती है विच इज कॉल्ड एज इन्वर्जन। इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड एसिड्स और एंजाइम इनवर्टेज सुक्रोज अंडरगोज हाइड्रोलिसिस और which is known as inversion and the hydrolysis product is known as inverse sugar। अब क्या होता है सुक्रोज, इसकी बेसिक्स में अगर आपको बताऊं, सुक्रोज असलियत में लीवो रोटेटरी होता है, यानी ये लेफ्ट साइड लाइट को रोटेट करता है, मतलब कि लेफ्ट साइड लाइट को रोटेट करता है आफ्टर इन्वर्जन। लेकिन जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है सुक्रोज की, फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू दिस स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और यहाँ पर हमारे पास एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है। अब जो इसका नेचर होता है वो होता ऐसा है कि सुक्रोज खुद तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, मतलब ये राइट साइड लाइट को रोटेट करता है। अगर आप पोलराइज लाइट इसकी ओर पास करेंगे तो ये लाइट को राइट साइड रोटेट कर देगा, लेकिन जब आप इसको एसिड से सब्जेक्ट करते हैं या फिर एंजाइम से इसको ब्रेक करते हैं तो इन्वर्ट शुगर जो फॉर्म होती है, जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर होती है, वो लेफ्ट साइड रोटेट करने लगती है। तो हुआ क्या, राइट साइड रोटेट करने वाला कंपाउंड अचानक से लेफ्ट साइड रोटेट करने लगा, तो ये एक तरीके से अपोजिट चीज होने लगी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन, यानी opposition of the polarity of light is known as inversion, that is why it is known as inverse sugar। so आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, this is sucrose made by glucose and fructose, lactose made by glucose and galactose, maltose made by two glucose molecule, raffinose which is raffinose stachys दोनों पल्सेस में बहुत ज्यादा abundant क्वांटिटी में फाइंड होते हैं। एक ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को मिला के रेफिनोज बनता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और दो गैलेक्टोज को मिला के हमारे पास स्टेचाइयोस बनता है। Now let us see their function. See, apart from their nutrient value, what is the nutrient value? That they provide energy. There are 5 major functions of oligosaccharides. These are that they act as humectants. Humectants means they act as moisture absorber, they act as plasticizer, texturizing agent, flavor producing agent as well as sweetener। ये 5 major roles हैं food industry में oligosaccharides के। Now let us discuss them one by one। We know that confections, bakery toppings और instantly reconstitutable powder जैसे soup powder या फिर जो हमारे पास ओरल डिहाइड्रेशन पाउडर आते हैं, या फिर जो हमारे पास अदर मिल्क में जो हम ऐड करते हैं पाउडर्स, ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होते हैं और अगर ये क्लम्प बना दे तो उनकी क्वालिटी डिटेरियोरेट हो जाती है। हमें इनको सूखे फॉर्म में, पाउडरिश फॉर्म में ज्यादा हम इसका यूज करना पसंद करते हैं। तो इनके केसेस में क्या होता है, ऐसी शुगर हमें यूज करनी है जो कि पानी को ऑब्जॉर्ब ना करें, क्योंकि अगर ये पानी को ऑब्जॉर्ब करने लगेगी तो पानी की मात्रा बढ़ेगी हमारे फूड प्रोडक्ट में और वो क्लम्पीनेस आ जाएगी, जिसके कारण लोग इसकी क्वालिटी को रिजेक्ट कर देंगे। तो इसमें लेस ह्यूमिकेंट वाली हमें शुगर्स यूज करनी पड़ती है, जैसे माल्टोज और लैक्टोज, क्योंकि वाटर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड क्वांटिटी में अपटेक करते हैं। अब कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ बेक्ड फूड्स होते हैं जैसे केक्स होते हैं, उनको हमें मॉइस्ट फॉर्म में लेना पसंद होता है, जितने गीले गीले लगते हैं उतनी ज्यादा उनकी अच्छी क्वालिटी होती है। तो उनके केस में ऐसी शुगर्स हम यूज करते हैं जो कि ज्यादा रिटेन कर लेते हैं वाटर को। उसका एग्जांपल है इनवर्ट शुगर या ग्लूकोज शुगर। यानी इनवर्ट शुगर और ग्लूकोज शुगर बहुत ही बेहतर होते, सिरप जो होते हैं वो बहुत बेहतर होते हैं वाटर को रिटेन करने में। अब प्लास्टिक कन्फेक्शनरी जैसे कि हमारे पास फिलिंग्स आती हैं, टॉपिंग्स आती है, शॉर्टनिंग्स आती हैं, ये जो है ये ब्रिटल नहीं होनी चाहिए, इसमें हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एकदम एक परफेक्ट जो इनका स्ट्रक्चर होता है इनको मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्रिस्टलाइजेशन नहीं चाहिए। तो इसमें हम ऐसी शुगर्स यूज करते हैं जो कि क्रिस्टलाइजेशन की प्रॉपर्टी शो ही ना करें, जैसे कि माल्टो ओलिगोसैकेराइड्स ये शो नहीं करते, सॉर्बिटॉल ये शो नहीं करती। इसके अलावा जैसे कि हमारे पास कुछ फ्रूट्स जिनको हम लोग सिरप्स में डालते हैं तो उनको हमें उनका फर्म स्ट्रक्चर चाहिए, हम नहीं चाहते कि वो बहुत ज्यादा सॉगी हो जाए या बहुत ही ज्यादा हार्ड है, तो उसके लिए हम लोग कंसंट्रेटेड शुगर सिरप्स यूज करते हैं, जैसे कि कंसंट्रेटेड ग्लूकोज सिरप या कंसंट्रेटेड सुक्रोज सिरप, जिससे कि वो फर्म रहे। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये ऑस्मोसिस से वाटर को रिमूव कर देता है और सेल वॉल के पॉलीसैकेराइड्स के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिससे वो एकदम फर्म रहते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने शो किए।
Now let us discuss about one important property that is there in the flavor and color development. See, sugar in dry conditions or their syrups when heated undergo a number of reactions depending upon the temperature and the presence of catalyst. मतलब अगर हम लोग शुगर या फिर शुगर की सिरप्स को अगर हम लोग हीट से सब्जेक्ट किया करा जाए या फिर कुछ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट से सब्जेक्ट किया जाए तो उनमें एक नंबर ऑफ रिएक्शंस होती हैं. रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं? ये रिएक्शंस को मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूँ तो इक्विलिब्राइजेशन ऑफ एनोमेरिक एंड साइक्लिक फॉर्म, isomerization, dehydration, fragmentation, which leads to the formation of unsaturated polymers with brown color. मतलब ऐसी पर्टिकुलर फिजिकल एनवायरनमेंट देने से ऐसे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं जो कि ब्राउन होते हैं कलर में, करेक्ट. एंड विद द यूज ऑफ द प्रॉपर कैटलिस्ट इट इज पॉसिबल टू कंडक्ट the process of producing these brown colored products, and this process is known as caramelization. And this caramelization which forms caramel is very important in producing a specific flavor or a coloring matter. If we want to produce flavor, अगर हमें flavor चाहिए तो फिर हम लोग सुक्रोज की कंसेंट्रेटेड सिरप को हीट से सब्जेक्ट करके कैरेमलाइजेशन कराते हैं, और अगर हमें सिर्फ और सिर्फ कलर चाहिए तो फिर हम लोग ग्लूकोज सिरप्स की कैरेमलाइजेशन कराते हैं. ये आप देख सकते हैं, ये है कैरेमल, ये कंसेंट्रेटेड सिरप्स और ये बेक्ड प्रोडक्ट. So this was all about my video, and I hope you understood from the scratch. I tried to explain the properties of monosaccharide. Then we discussed about the oligosaccharides, and in oligosaccharides also we discussed a few examples of disaccharide like the lactose, sucrose, maltose, raffinose. Raffinose is a trisaccharide. Means these three important disaccharide. We also discussed about an important trisaccharide, that is raffinose. We discussed a tetrasaccharide also, that is stretchiose. Then after that we moved on to the basic applications in the food industry. So I hope everything is clear to us. If you have any doubt, you can drop your doubts in the comment section. So meet you in the next video. Thank you.